प्रोवाइडेड कि आपको क्या सूट करता है ये आपको डिसाइड करना है, या आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है ये आपको डिसाइड करना है। फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नए इन्वेस्टर होने के नाते आप इस इंट्राडे को छोड़िए, स्विंग या पोजिशनल में जाइए, वहाँ आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आपकी सक्सेस होने की ज़्यादा रहेगी। यही मेरा कहना है इस बारे में। और ओवर टू प्रांजल। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, सर ने कहा, और अगर मैं ये माइंडसेट की बात करूं तो अगर मैं YouTube पे जब वीडियोस देखता हूं और मुझे ये पता होता है कि क्या टाइटल डालने से और क्या लिखने से और क्या टॉपिक पे कितने व्यूज़ आएंगे, और मैं आपको सेम वीडियो बताता हूं। अगर मैं एक वीडियो पे लिख दूं कि 2 मल्टीबैगर स्टॉक जो साल भर में डबल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं मेरे व्यूज़ आएंगे कम से कम 1 मिलियन। अगर मैं डालूं 2 सेफ कांस्टेंट कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स, 1 लाख व्यूज आएंगे। तो आप जो ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। अगर कंटेंट क्रिएटर्स को ये दिखेगा कि अच्छा ऐसा करने से ज़्यादा व्यूज आते हैं, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं कई बार उस तरीके का बताने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन हमें एज इन्वेस्टर कम्युनिटी ये सोचना है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हमारे दिमाग से ये अभी तक नहीं निकला है कि साल भर में पैसा डबल नहीं हो सकता। 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, आपका 10,000 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सोच गलत है, ये प्रोसेस गलत है, तीसरे साल वो 40 का 0 होगा, तो आपके 3 साल भी बर्बाद हुए। इससे अच्छा तो पहले साल ही 10 का 0 हो जाता। तो अगर प्रोसेस गलत है तो जितनी देर से नुकसान होगा उतना बड़ा नुकसान होगा। बट शारिक सर, डू यू ऑल्सो थिंक कि आज का इन्वेस्टर रेकलेस है? Thank you. So I completely agree with what you said, sir, because when it comes to long-term investing, right, who wouldn't have made money over the last 2 years? Given that Nifty was 7,000, 8,000, now it is at 18,000, anyone would have made money if they were actually invested for the long term. But let's be really real here. How many of you really wanted to be an investor in 2020? Or did you want to become a trader? Investor or trader? What got you into the market? Did you think, okay, I'll invest for the next 10, 20 years, my money will compound, I'll become so much? Or did you see screenshots of traders on Twitter, on Telegram, and want to make money by intraday trading futures and options? How many of you are traders here? Option buying, option selling, intraday equity? Not many? Then it's fine. There is a different audience, right? So my point is, what I feel is, recklessness happened more with traders and not with investors, right? Maybe a lot of people came into the market wanting to be investors, good. If they stay invested for the long term, paisa to banna hi hai. There's no question about that. I strongly believe at 2015 Nifty would be 1 lakh, 2 lakh, we never know. I believe in the story of India, right? So, so वो तो होना ही है ना. So market will definitely go up given that India is growing. So there's no question about making money in long-term investing. Everyone would make money. The only mantra is not selecting the good stock, not selecting the right portfolio. It is just about staying invested for the long term. But it is not necessary for your stocks to be multi-bagger. Out of the 2,000 stocks available, you need not have the best 20 stocks in your portfolio. You just need the, I don't know, among the 1,000 best stocks, maybe 100th best stock, 50th best stock, 11th best stock, 37th best stock. Chalega. Just be invested for the long term. Everyone would make money. But I saw recklessness happening in trading. A lot of people got attracted to intraday equity trading, option buying, right? Without knowing position sizing, without knowing the technicalities of option buying and option trading, got into it with say 50,000, 1 lakh. I've personally seen a lot of people blowing up their capital in a day. That is what actual recklessness is, right? Getting into trading just by seeing screenshots of people and coming into the market and blowing up their capital. So I think that is what true recklessness is. Twitter पे everyone is profitable. Absolutely, yeah. उसमें भी ये होता है ना, एक दिन का screenshot कोई भी दिखा सकता है, right? So आप ये करो कि one day morning you buy a call option. Market went up, you made good money. Maybe market went down, you would have lost money. You wouldn't put screenshot that day. और 2 डीमैट अकाउंट, ये भी होता है, बहुत लोग ये भी करते हैं कि एक में कॉल ऑप्शन बाय करता है, एक में पुट ऑप्शन बाय करता है, जिसका प्रॉफिट बन गया उसका स्क्रीनशॉट डाल दो ट्विटर पे. सो ये सब भी हो रहा है ना. सो आई थिंक वेयर द रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हैज टू बी सुपर केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, मोर इम्पोर्टेंटली, बिकॉज वहां पे द फ्लक्चुएशन ऑफ देयर कैपिटल, देयर हार्ड अर्न्ड मनी इज सुपर हाई. That is where they have to be careful. Long-term investment क्या ही कर रहे हैं? That's what I think. Nothing to be done there. Just stay invested. But trading can
make you a lot of money if done right, but it will blow up your account if done bad, which happens a lot, which is sad, which is recklessness. Pankaj sir, you wanted to add something? ये जो ट्विटर्स के जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, आप उनसे बच के रहिए। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेडर कौन है? आप में से कोई जानते हैं? बेस्ट जिम साइमंस। जिम साइमंस की हिस्ट्री आप जानते हैं? नाम सुना है? आप इस समय गूगल कर सकते हैं, द मैन हु सोल्ड द मार्केट। 1986 से आज तक, 86 राइट या 88? 1986 से लेके आज तक उनका एनुअलाइज्ड रिटर्न है 66%। एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना है? 66%। क्या आप सोच सकते हैं पॉसिबल है? हम वॉरेन बफेट को आइडियल मानते हैं, लेकिन उनका रिटर्न मुश्किल से अराउंड 17-18%। तो जिम साइमंस जिनका 66% रिटर्न है, आप इमेजिन कर सकते हैं उनका सक्सेस रेशियो इस मार्केट में क्या रहा होगा? कोई बताएंगे? जो 66% एनुअलाइज रिटर्न गेन कर रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो क्या होगा? कोई तो गेस कीजिए। स्पीचलेस हो क्या? 90%, 90% या 80%? 80। और ट्विटर पे कितने हैं परसेंटेज सक्सेस रेशियो? 100%। तो आप बताइए कैसे पॉसिबल है, जबकि हकीकत ये है उनका सक्सेस रेशियो है 51%। कितना? 51। जब यदि 51% सक्सेस रेशियो से वो 66% गेन कर सकते हैं, तो 100% की हमें जरूरत नहीं है। हमें बस ये एक्सेप्ट करना है, वी वेंट रॉन्ग, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। इज इट ओके? वुड यू लाइक टू एड समथिंग? So the thing with 66% is very interesting, right? A lot of you might think that, okay, 66% is nice. Jim Simons became Jim Simons with 66%, right? Now you break it down. You might feel 66% is nice. You can make 66%. But when you break it down, normal retail traders are never excited with 66%. What is 66% broken down into a month? Nearly 5% a month. You make 5% returns a month. That is 60% return. Every month you make 5%. You make 60% a month, a year. How much will you have to make 1 week to make 5% a month? Nearly 1%. You deploy 1 lakh rupees capital to trade the market, trade derivatives, trade options, futures, or swing trading in stocks. 1 lakh rupees capital के ऊपर you will be making 1000 rupees profit. Who is excited with that? कोई इसमें excitement, people are not excited with that. The problem is they come to the market with 1 lakh, they want to trade and they want to make 30,000 in a month. होगा ही नहीं. So you should understand, no. So work it downwards. The best person, best trader as you may call it, James Simons at 60%, work it down. So what is realistic is, you have a capital of nearly 1 lakh rupees. You trade in the market, try to make nearly 1000 rupees a week. That is where success would start actually happening. But the problem, there is no dopamine hit there, right? They make this 1000 rupees worth 1 lakh. They go to YouTube or any influencer putting screenshot of 1 lakh a day. And they'll be like, oh, even I want to make 1 lakh. So trading has become a competitive sport in India, right? Someone wants to make more money than someone else. They don't understand the fact that trading is a very personal, subjective thing. You make money from trading to make your life better. You need to make only enough money which will make you happy. You don't want to make money more than someone else. It's not a sport, right? मैं बस ये बोल रहे थे और मैं सुन रहा था कि क्या दिन आ गए। पहले लोग इन्फ्लुएंसर को ट्रोल करते थे, अब इन्फ्लुएंसर बैठ के खुद को ट्रोल कर रहे हैं। बट यू नो, जो उन्होंने डोपामिन हिट की बात की, आई थिंक इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा, और शायद ट्रेडिंग से भी, द मोस्ट बोरिंग थिंग इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग। तो मेरा तो एक सिंपल थंब रूल है, कोई स्टॉक है ना, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है या बहुत यंगस्टर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहिए ही नहीं, टाइम बचाओ, चाहिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाइप है उसके अराउंड, मेरे को नहीं चाहिए। एंड इट्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ एसेट क्लासेस एज वेल। आई थिंक जैसे मैं बहुत ही एंटी क्रिप्टो हूँ, आई थॉट द सेम केस, अगर यंगस्टर्स किसी चीज़ को लेके एक्साइट हो रहे हैं तो मेरे को नहीं चाहिए वो। एक ना फिर एक मुझे शारिक सेड समथिंग एंड इट हिट मी कि 2021 में हम टीवी में IPL में 3 तरह के एड्स सबसे ज़्यादा देखते थे। पहला होता था रणवीर सिंह का क्रिप्टो वाला ऐड, दूसरा होता था क्रिकेटर्स का ड्रीम 11 वाला ऐड, और तीसरा होता था स्टॉक ब्रोकर्स वाला ऐड। व्हाट डज दिस टेल अस? कि
अब ये तीनों कंपनियां, तीनों इंडस्ट्रीज अगर बहुत पैसा जला के रिसर्च करके एड्स कर रही हैं, तो उनके दिमाग में उनकी रिसर्च ये बोलती है कि फैंटेसी क्रिकेट, क्रिप्टो और स्टॉक इन्वेस्टर्स सेम लोगों को अट्रैक्ट करता है। इट्स द सेम टारगेट सेगमेंट। मतलब हमारे लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज सिमिलर टू ड्रीम 11 पे एक टीम बनाना। इट्स द सेम थिंग, हम सेम चीज सीख कर रहे हैं दोनों से, लकी होके इंस्टेंट मनी। एंड विच इज वेयर किस किसने ड्रीम 11 ट्राई किया है? लॉस हुआ ना? बस वही हाल होता है हमारा ब्रोकिंग के साथ, क्योंकि हम उसको कंसिडर वो कर रहे हैं। तो ना स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। आप जो उसकी तरफ फेंकोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो बट यू नो, कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ना अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे उन्होंने 90s में पैदा किया, ताकि मैं जब तक बड़ा हुआ तो जियो आ चुका था, इंटरनेट आ चुका था, KYC ऑनलाइन होने लगा था, और जैसे यू नो 50s 60s US का था, 70s 80s जापान का था। आई थिंक नेक्स्ट 20 years बिलोंग्स टू अस। अगले 20 साल हमारे हैं। हम सारे एस्पेक्ट देख लें, हम AC का पेनिट्रेशन देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें, क्रेडिट कार्ड देख लें, लोन देख लें, इंश्योरेंस देख लें, और अपना इंडिया का बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी। तो पहले क्या होता था, कई प्राइवेट प्लेयर्स ग्रोथ लाने की कोशिश करते थे, लेकिन बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो आप एग्रीकल्चर में क्या कर लोगे, इंटरनेट नहीं है तो आप IT में क्या कर लोगे। इंडिया में अब बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो पंकज सर, आई स्टार्ट विथ यू। डू यू थिंक नेक्स्ट 20 साल इट्स द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन? प्रांजल ने वो क्वेश्चन पूछ लिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज से 35 ईयर पहले मैंने स्टॉक मार्केट में करियर स्टार्ट किया था, और उस समय सेंसेक्स क्या हुआ करता था, कोई इमेजिन कर सकता है? इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि आज से 98-99 में सेंसेक्स क्या रहा होगा? कितना? 1500? नहीं। और 98 बिफोर हर्षद मेहता, शायद आप लोगों ने 1988, 1988, 1990 से पहले इट वाज 300 जब मैंने करियर स्टार्ट किया था। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, सेंसेक्स क्या है? 60,000। कितने टाइम हुआ?